असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा ने कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई और उनकी पत्नी को लेकर किए बड़े खुलासे। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी से भी पूछ लिया सवाल। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि अब कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई की काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, जिन्हें हाल ही में कांग्रेस ने असम का अध्यक्ष बनाया है। दरअसल आपके लिए बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा ने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फिर एक बार बड़े खुलासे करते हुए गौरव गोगोई की पत्नी के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है कि गौरव गोगोई की पत्नी भारत की आईबी की तमाम जानकारी और डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर पाकिस्तान को पहुंचा रही थी और खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रही थी। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि इन तमाम चीजों को लेकर मेरे पास मौजूद हैं काफी बड़े सबूत, जिसे सबूतों को मैं आने वाले 10 सितंबर को करूंगा उजागर। जहां एक तरफ मेरे पास इन तमाम चीजों को पुष्ट करने के लिए काफी ज्यादा भारी दस्तावेज मौजूद हैं, जिन्हें मैं 10 सितंबर को सार्वजनिक करने जा रहा हूं और ऐसा खुलासा करूंगा कि राहुल गांधी भी ये सोचेंगे कि आखिरकार हमने गौरव गोगोई को क्यों बनाया असम का अध्यक्ष, और ये सोचकर पछताएंगे। और भी कई बड़े आरोप मुख्यमंत्री के द्वारा लगाए गए हैं और कांग्रेस से पूछे हैं सवाल। सुनिए क्या क्या कह रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को जवाब देते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा। The entire point was to dethrone Bhupen Bora. He could have admitted that prior to his appointment also. So he is very smart. He knows that he has to admit. So he admitted after taking the appointment letter as a Congress president. He could have admitted this during Panchayat election also. He neglected Assam journalists like anything. Every time they have asked, he said CM is nonsense, CM is falana. Today he admitted because he knows that 10th September is coming. But today also he has made a very wrong statement. His Pakistan visit was nothing to do with his wife. That was an independent visit with the approval of Interior Department of Pakistan. But today has made personal attack on you as well, you know. No, ठीक है भाई, मैं तो हमें असम का लोग मेरा ऊपर पर्सनल अटैक करते ही रहते हैं. That is not a big deal. No, is it a build up for the next year's elections when we? Pakistan thing is nothing to do with election, brother. Election will come and go. Election will come, election will go. That is nothing to do with election. This is about national security, about Bharat. This is nothing to do with election. Anyway, if he is not somebody, we have to fight election. We fought election against his father. So you cannot say that election there will be no enemy. You will have opponent. If not he, somebody else. If not somebody else, other. So we have fought with every kind of people, right from Akhil Gogoi to everybody. So fighting is not a question. But this is about nation. This is about Bharat. This is about India. His wife was snooping on our IB. And I have documents to prove that. It was all because of taking advantage of Tarun Gogoi's position, they crafted a role within our Indian establishment. And it was snooping on behalf of a particular climate activist group. সেইটো কেনেকৈ জানিম ভাই, এইটোতো মোৰ হাতত আৰু মই ভগৱান হ'লেহে জানিম সুধিবৰ কাৰণে. At least till 2017-18 they have maintained. After that I don't have evidence. I have the chain only up to 2018, post-COVID, pre-COVID. After COVID I don't know. But till then they were close to the Pakistani establishment. And many more things will come on 10th September. Just wait. আৰু কালিও তেওঁ ৰিচিভ কৰিব এই মানুহবিলাকে মেক্সিমাম বাছ আহিব লাহৰি ঘাটৰ পৰা. আপোনালোকে সেইবিলাকে দেখুৱাব জনসংখ্যা, জনসমুদ্ৰ, হয় নহয়? কিন্তু জনসমুদ্ৰকেইটা চাই ল'লে হ'ব আপোনালোকে. They are deeply involved. মই আগতে কৈছিলোঁ পাকিস্তান গৈছে,
তেওঁ স্বীকাৰ কৰি ল'লে। আজি মই নেক্সট টাইমত কৈছোঁ যে তেওঁলোকৰ গোটেই সম্পৰ্কতে পাকিস্তানী ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰৰ লগত। আজি মই নেক্সট এলিগেশ্যনটো দিছোঁ। ইমান দিনে মই অলপ সৰু কৰি কৈ আছিলোঁ যে এটা এটাকৈ ট্ৰেপত পৰি পৰি গৈ থাকক। আজিতো মই 3টা কথা কৈছিলোঁ, 3টাই প্ৰুভ হৈ গ'ল। ৰিপুণ বৰাই ক'লে যে পৰিবাৰে পাকিস্তানৰ পৰা দৰমহা লৈছিলে। তেওঁ নিজে ক'লে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী ভাৰতীয় নহয়, মোৰ পত্নী ভাৰতীয় নহয়। লাষ্টত গ'ল যে মই পাকিস্তানত যোৱাটো হয়। পাকিস্তানত যোৱা ফটোবোৰ টুইট কিয় নকৰিলে? সিক্ৰেট क्यों आसिले ভিজিটটো? देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से एक तरफ मुख्यमंत्री ने आज गौरव गोगोई के ऊपर ये बड़ा खुलासा कर दिया है और आरोप लगाए हैं। दरअसल आपके लिए बता दें कि अब से 1 महीने पहले भी ये तमाम सवाल पूछे गए थे मुख्यमंत्री के द्वारा, और मुख्यमंत्री ने जब इन सवालों को उठाया तो मीडिया ने भी गौरव गोगोई से इसी तरीके के सवाल पूछे, और तब गौरव गोगोई ने एक भी बात मीडिया के सामने नहीं की। और जिस समय पर कांग्रेस ने गौरव गोगोई को बना दिया असम का अध्यक्ष, करीब 1 महीने बाद कांग्रेस के नेता गोगोई ने माना कि वो पाकिस्तान गए थे और वहां वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए गए थे। बकायदा ये बात गौरव गोगोई ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कही, और अब से मुख्यमंत्री का ये कहना है कि गौरव गोगोई ने जो कुछ बताया है वो केवल और केवल 10% है। वो पाकिस्तान में अपनी पत्नी से मिलने नहीं गए थे। उनकी पत्नी उस समय भारत में थी, वो वहां पर प्रशिक्षण लेने के लिए गए थे, और वो अपनी पत्नी और उनकी पत्नी भारत विरोधी गतिविधियों में गहराई से शामिल हैं। उनका बेटा भारत में पैदा हुआ था और बाद में उसे ब्रिटिश नागरिकता गौरव गोगोई ने दिला दी। उनका बेटे के पास पहले भारतीय पासपोर्ट था, फिर उसे सरेंडर कर दिया गया। यानी कि पूरे परिवार की पोल पट्टी खोलकर रख दी है असम के मुख्यमंत्री ने। और वहीं दूसरी तरफ गौरव गोगोई ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद इन बातों को स्वीकारा है कि वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए गए थे। उनकी पत्नी उस समय पर पाकिस्तान में काम किया करती थी। तो इन तमाम चीजों को लेकर आज हेमंत बिश्व शर्मा ने भी यही सवाल उठाया कि आखिरकार इन तमाम चीजों को स्वीकार करने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लग गया गौरव गोगोई को, क्योंकि वो बनना चाहते थे पहले असम के अध्यक्ष, और उसके बाद वो काफी ज्यादा शातिर हैं और अब वो कुछ ही चीजों को बता रहे हैं। पर जिस तरीके से यहाँ से गौरव गोगोई की पत्नी ने आईबी की जानकारी को पाकिस्तान भेजा है, वहां से किस तरीके के संबंध गौरव गोगोई की पत्नी के रहे हैं, गौरव गोगोई के पद का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, इन तमाम चीजों पर मेरे पास काफी बड़े सबूत हैं, जिन्हें मैं आने वाले 10 सितंबर को पेश करूंगा। आपके लिए बता दें कि गौरव गोगोई को लेकर हुए खुलासे पर सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आज कांग्रेस और गौरव गोगोई पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी राहुल कांग्रेस गांधी पर सवाल उठाए हैं। इस पूरे मामले को लेकर सुनिए क्या कह रहे हैं शहजाद पूनावाला। देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने जो शुरुआत से तथ्यों के आधार पर कुछ गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बातें रखी थी, एक के बाद एक आज उसे मजबूरी में मानना पड़ रहा है गौरव गोगोई जी को। सबसे पहले तो बता रहे थे कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी झूठ बोल रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो है वो राजनीति से प्रेरित है, पर अब उन्होंने माना कि उनकी पत्नी पाकिस्तान में थी। उन्होंने माना कि वो स्वयं भी पाकिस्तान गए थे। प्रमाण है कि किस प्रकार से आईएसआई से लिंक किए गए एनजीओ उनके वाइफ के साथ, उनके वाइफ को पैसे भी दिए जा रहे थे। कनेक्शन भी सामने नजर आ चुका है कि कैसे गौरव गोगोई स्वयं कई सारे स्टूडेंट्स को लेकर पाकिस्तान के एम्बेसी में गए थे। और अब तो ये भी सामने आ चुका है, जिसके ऊपर कई सवाल निशान उठे हैं, कि उनके परिवार के कुछ सदस्यों की नागरिकता को लेकर कि वो विदेशी नागरिक है, इस पर भी कई सारे गंभीर सवाल हैं। मुझे लगता है कि आज पाकिस्तान परस्ती का और पाकिस्तान नेक्सस का एक और अध्याय कांग्रेस का सामने आया है, परंतु इसमें शुरुआती दौर से ही पारदर्शिता और ईमानदारी से जवाब देने के बदले बचाव किया गया। यहां तक कि जो पाकिस्तान परस्त लॉबी है कांग्रेस की, उसने तो पूर्व अध्यक्ष असम प्रदेश कांग्रेस को हटाकर गौरव गोगोई को ही वहीं पर स्थापित कर दिया है।
अब सवाल सिर्फ इतना बनता है कि जो लोग कल तक हेमंत बिस्वा शर्मा जी को भरपेट गालियां दे रहे थे, आज उन्होंने स्वयं स्वीकारा है वो पाकिस्तान गए थे। ये बहुत गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। इस पर राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि जो भी सॉफ्ट कॉर्नर रखता है पाकिस्तान के लिए, उसी को कांग्रेस में प्रमोट किया जाता है। आप देखिए, शशि थरूर जी ने पाकिस्तान को बेनकाब किया अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, तो उनको तो बोल रहे हैं कि आप पर्सोना नॉन ग्राटा, आप कांग्रेस के नहीं हो। और जो पाकिस्तान के साथ इतने गहरे और संदेहजनक रिश्ते रखते हैं, उनको आप प्रमोट करते हो। देखिए, आपने देखा कि अब बीजेपी लगातार हमलावर है और ये कह रही है कि जिस तरीके से आज ये खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं, यही बड़ा कारण है कि जब कभी भी कांग्रेस के लोग पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी नहीं करते हैं और जब यहाँ से डेलीगेशन भी भेजा जाता है तो उसके ऊपर भी सवाल उठाए जाते हैं। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिन पर जवाब देने की जरूरत है अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं को। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि गौरव गोगोई ने भी मुख्यमंत्री के द्वारा जो तमाम आरोप लगाए गए हैं, जो तमाम बड़ी बातें असम के मुख्यमंत्री ने कही हैं, और उन्होंने कहा है कि इन तमाम चीजों का इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, हमारे ये देश की सुरक्षा है, देश का मामला है और इसीलिए मैं आने वाले समय पर प्रूफ उजागर करूंगा और प्रूफ के साथ बोलूंगा। वहीं जब यही तमाम सवाल गौरव गोगोई से पूछे गए तो गौरव गोगोई ने कहा है कि मेरे ऊपर लगाए गए तमाम आरोप निराधार हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री को झूठ बोलने का शौक है और लोगों को भ्रमित करने का शौक है। आप सुनिए जरा गौरव गोगोई का भी ये बयान। देखिए, मुख्यमंत्री की ये पुरानी आदत है कि लोगों के आंखों में धूल झोंकना। एक समय में जब राहुल गांधी जी असम में आए थे यात्रा में, तो उस समय तो राहुल गांधी जी का बॉडी डबल मुख्यमंत्री को दिखता था और बॉडी डबल को लेकर वो बहुत वार्तालाप करते थे। मेरे मन में यही सोच है कि मेरे संदर्भ में जो ये झूठे आरोप ला रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरा कोई बॉडी डबल उनके मन में मंडरा रहा होगा और इसीलिए इस प्रकार से नॉनसेंस रिडिकुलस बातें वो कर रहे हैं। जो अगर बहुत संवेदनशील मामला है तो ये कोई पिक्चर नहीं है बाहुबली 1 बाहुबली 2 जिसको लेकर हम 10 सितंबर तक लगे रहें। जो भी हमारी बातें रही है वो मैंने आज प्रेस वार्तालाप में आपके समक्ष रखी है कि जिस समय का वो विवरण कर रहे हैं वो आज से 13 साल पहले का है, आज से 14 साल पहले का है, मेरे संदर्भ में आज से 12 साल पहले का है। तो हमारा प्रश्न ये है कि अगर उस समय कुछ गैरकानूनी काम हमने किया है तो सरकार पिछले 10-11 साल से चुप क्यों है। तो देखिए, एक तरफ गौरव गोगोई का लगातार ये कहना है कि उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, इतने दिनों से सरकार कहाँ सो रही थी, और जिस बात को लेकर मैंने कहा कि मैं अपनी पत्नी से मिलने गया था, ये मुद्दा तो काफी ज्यादा पुराना है, बस 12 से 13 साल पुराना है। और देखिए कि आज जिस तरीके से आज कांग्रेस की पोल पट्टी खुल रही है, कांग्रेस के चेहरे से नकाब हटा रही है बीजेपी, इसका कितना ज्यादा प्रभाव आने वाले चुनावों पर पड़ेगा। क्योंकि अगर गौरव गोगोई जैसे नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी कांग्रेस तो शायद एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है। और इसी तरीके की बातें आज जनता भी कह रही है कि कांग्रेस को यह फैसला लेने से पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि गौरव गोगोई को लेकर ये सवाल पहले ही उठ रहे थे, यानी कि उनकी पत्नी के को लेकर जिस तरीके से उनकी पत्नी के पास भारतीय नागरिकता नहीं है, उनके एक बेटे के पास, यानी कि एक बेटी उनकी विदेश में पैदा हुई थी, उसके पास तो भारत की नागरिकता नहीं है, और जो बेटा यहाँ पर पैदा हुआ उसके पास भी भारत की पहले नागरिकता थी और फिर उसे सरेंडर कराकर 2020 के बाद ब्रिटिश की नागरिकता दिला दी गई। और एक ऐसा परिवार जहां से सिर्फ और सिर्फ गौरव गोगोई के पास भारतीय नागरिकता है, उसे किस तरीके से इतना बड़ा पद कांग्रेस असम में दे सकती है, ये तमाम सवालों से घिरी हुई है आज कांग्रेस पार्टी, जो अब असम की जनता और भारतीय जनता पार्टी उनसे पूछ रही है। खैर, देखना अहम रहेगा कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता आखिरकार इस पूरे मामले पर क्या रिस्पॉन्स देते हैं जो आरोप लगाए गए हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा।